Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबसे आशीर्वाद लेता हूँ कि कुछ श्रीमद् भागवतम अमर पुराण के ऊपर कुछ बोल पाऊँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेवा के लिए। तो आज का जो श्लोका है, कल प्रभु जी ने इतना सुंदर समझाया, तो यहाँ पे पूरा जो भक्ति का जो गुणगान हो रहा है, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, और भक्ति, भगवान और भक्त। तो अभी जो ये कल का भी श्लोका था, उसमें भक्त का कितना महत्व है वो समझा गया था। भक्ति हम केवल भक्तों के बीच में रह के कर सकते हैं, अन्यथा अकेले हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो जब तक हम भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। तो भक्त्या पुमां जात विराग इंद्रियात् दृष्ट श्रुता मद रचनानुचिन्तया चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्ठते रजुभिर्योग मार्गे। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Bhaktya, by devotional service, Puma, a person, Jat Viragha, having developed distaste, Indriyat, for sense gratification, Drishta, seen in this world, Shrutat, heard in the next world, Mat Rachana, my activities of creation and so on, Anuchintaya, by constantly thinking about Chittasya, of the mind, Yataha, engaged, Grahane, in the control, Yoga Yukta, situated in devotional service, Yatishyate, will endeavor, Rajubhihi, easy, Yoga Marge, by the process of mystic power. Thus, consciously engaged in devotional service in the association of devotees, a person gains distaste for sense gratification both in this world and in the next. By constantly thinking about the activities of the Lord, this process of Krishna consciousness is the easiest process of mystic power. When one is actually situated on the path of devotional service, is able to control the mind. तो यहाँ पे कपिल मुनि अपनी माता देहूति को क्या बता रहे हैं कि कॉन्शियसली, मतलब पूरी तरह से अपनी चेतना जब हम भगवान के भक्ति में लगाते हैं, कैसे भक्तों के संग में, तो उसका परिणाम क्या होता है कि एक व्यक्ति को अपने आप इस भौतिक जगत के इंद्र तृप्ति से छुटकारा मिलता है, या फिर उसको वो जो इंद्र तृप्ति है उसमें कोई रुचि नहीं आती, और केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी, क्योंकि वो निरंतर भगवान के लीलाओं का श्रवण या चिंतन कर रहा है। और ये जो कृष्ण भावनामृत का ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये सबसे आसान है। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, मतलब बहुत ही आसान है। और जो इस पद पे स्थित है, वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। तो हम जैसे जानते हैं कि मन बहुत ही इतना चंचल है और बहुत ही प्रमादी और बलवत दृढ़, इसको नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में आने से इवन ये जो मन को नियंत्रण करना आसान हो जाता है। परपट छोटा है, तात्पर्य मैं
पढ़ लेता हूँ. In all scriptures, people are encouraged to act in pious ways so that they can enjoy sense gratification not only in this life but also in the next. For example, one is promised promotion to the heavenly kingdom of higher planets by pious fruitive activities. But a devotee in the association of devotees, a devotee in the association of devotees prefers to contemplate the activities of the Lord. How he has created this universe, how he is maintaining it, how the creation dissolves, and how in the spiritual kingdom the Lord's pastimes are going on. There are full literatures describing these activities of the Lord, especially the Bhagavad Gita, Brahma Samhita, and Srimad Bhagavatam. The sincere devotee who associates with devotees get the opportunity to hear and contemplate this subject of the pastimes of the Lord, and the result is that he feels distaste for the so-called happiness in this or that world, in the heaven or in other planets. The devotees are simply interested in being transferred to the personal association of the Lord. They have no more attraction for the temporary so-called happiness. That is the position of one who is Yoga Yukta. One who is fixed in mystic power is not disturbed by the allurement of this world or that world. He is interested in the matters of spiritual understanding or spiritual situation. This sublime situation is very easily attained by the easiest process, that is Bhakti Yoga. Rujubhir Yoga Marge. A very suitable word used here is Rujubhi, or very easy. There are different processes of Yoga Marga, attaining yoga perfection. But this process, devotional service to the Lord, is the easiest. Not only is it the easiest process, but result is sublime. Everyone therefore should try to take this process of Krishna consciousness and reach the highest perfection of life. Ukam karoti vachalam pangum langete girim yat kripatam aham vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. तो हरे कृष्णा. तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद तीन चीजों पे लिख रहे हैं. एक है कि भक्ति कितनी आसान प्रक्रिया है, इजीएस्ट प्रोसेस. दूसरा, भक्तों का मतलब भक्तों के संग में ही भक्ति की जा सकती है. और तीसरा जो है कि किस तरह से हमको इस भौतिक जगत के आकर्षण के जो आकर्षण है वो किस तरह से चला जाता है. इस टेस्ट, जैसे भगवान ने बताया था ना, निराहारस्य देहिनाम रसोवर्जम रसोपृष्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. तो जब तक हमको हायर टेस्ट मतलब एक उच्च स्थिति का आनंद का अनुभव नहीं होता, तब तक हमको जो नीचे के स्तर के आनंद छोड़ना मुश्किल हो जाता है. तो प्रभुपाद यही समझाते थे. प्रभुपाद का मैं एक लेक्चर सुन रहा था इसी श्लोका पे. तो प्रभुपाद वही बताते हैं कि भक्ति और इंद्र तृप्ति एक साथ हम नहीं कर सकते. तो अगर कोई इंद्र तृप्ति कर रहा है और साथ ही साथ भक्ति कर रहा है, तो अगर वो भक्ति में अगर प्रगति कर रहा है, कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे वो जो इंद्र तृप्ति कर रहा है वो कम होते जाएगा और उसकी भक्ति में जो कार्यशीलता उसमें बढ़ते जाएगी. और धीरे धीरे कुछ समय बाद वो पूरी तरह से इंद्र तृप्ति के कार्य छोड़ के केवल और केवल भक्ति ही भगवान की भक्ति करेगा. तो अभी जैसे हम नए नए भक्ति में आते हैं, तब हमारे इंद्र तृप्ति का जो क्या कहते हैं आसक्ति वो हमें रहती है, क्योंकि हम नए नए भक्त जब रहते हैं तो हमको जो अन्य जो वरिष्ठ भक्त है, जो एडवांस डिवोटी है, उनके कृपा से क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे ये जो इंद्र तृप्ति के कार्य कम होते हैं. तो केवल भक्तों के द्वारा ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा अकेले हम लोग भक्ति नहीं कर सकते. तो इसके वजह से अगर हम देखेंगे, आप एक इस्कॉन के मंदिर में आना और अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाना, किस तरह से वातावरण वहां पे रहता है. तो जब हम भी जब नए नए भक्ति में आए थे और कोई सेंटर में या कोई टेम्पल से जुड़ा हुआ है, तो आप जब नए नए आए थे तो ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से केवल क्या कहते हैं सेल्फलेस डिवोशन या फिर क्या कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम
मतलब केवल और केवल कृष्णा की भक्ति चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह का हमारा मनोरथ नहीं था। हमारा क्या था कि चलो यहाँ पे अगर आए हैं तो भक्ति करते करते हमारे जो बाकी सारी चीजें जो हमको चाहिए, धन और फिर अच्छा मान लो घर में अच्छा वातावरण, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा जॉब, ये सब हमारे मन में चल रहा था जब हम नए नए भक्ति में आए। लेकिन जब हम बार बार सत्संग में जाने लगे तो वहां का वातावरण कैसा था, हम अन्य भक्तों को देख रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, प्रभुपाद की किताब पढ़ रहे थे, तो हर इसमें एक चीज हमको बताई जा रही थी कि यहाँ पे जो है ये भौतिक जगत में हर चीज अशाश्वत है, और केवल भगवान की भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो शाश्वत चीज है। और हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो ये बार बार सुन सुन के धीरे धीरे हमको पता चला कि हम जब आए थे तब हमारा जो लक्ष्य था, भक्ति भी करनी है, इस संसार के भोग को भी भोगना है, पैसे भी कमाने हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे कम होने लगे। क्यों? वातावरण के कारण। क्योंकि हर भक्त के मुख से हम यही सुनते थे कि हम लोग भक्ति केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और अन्यथा और कुछ भी उद्देश्य नहीं है। तो वही अगर आप एक साधारण कोई और बड़े कोई भी मंदिर में आप जाइए देवी देवताओं के, तो वहां पे क्या होता है, वहां का वातावरण अलग होता है। तो वहां पे इवन आप जब नारियल या फिर फल चढ़ाते हैं भगवान को, और वहां पे जो ब्राह्मण रहते हैं या भट्ट जी रहते हैं जो भगवान की वहां पे सेवा करते हैं, तो जब आप उनके पास जाते हो और आप जो भी आपने लाया है, आपकी अगरबत्ती है, नारियल, वो पूरा जब आप उनको देते हो चढ़ावा भगवान के लिए, तो क्या करते हैं, आपको सामने भगवान के सामने रख के आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और कैसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये देखिए आपके चरण कमल के सामने आया हुआ है ये व्यक्ति, तो आप कृपा करके इसको ऐश्वर्य दीजिए, उनके घर में समृद्धि दीजिए, उनके बच्चों को अच्छा पढ़ाई करने का आप उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे बढ़ के उनको अच्छा नौकरी मिले, इनका स्वास्थ्य आप अच्छा रखिए, इनको बहुत यश दीजिए, इनको कोई किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। तो जब हम ऐसे बार बार सुनते हैं तो वातावरण ऐसा होता है कि हमको लगता है हाँ यही भक्ति है, मतलब आना है, कुछ चढ़ाना है और भगवान से केवल मांगना है। तो ये फर्क होता है, एक आप जब एक आध्यात्मिक वातावरण में और एक जो भौतिक वातावरण, तो वहां पे आपको लगता है कि बार बार ये सुन के कि ये भी सही ही है। लेकिन जब हम ऐसे जो बोनाफाइड या फिर ऑथराइज ऐसे सत्संग में जहाँ पे सब लोग परंपरा में भक्ति कर रहे हैं और सबके मुख से यही सुन रहे हैं कि केवल क्या कहते हैं सेल्फलेस डिवोशन करना है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमको पता चलता है कि इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करेंगे तो हम लोग भक्ति कभी नहीं कर सकते। क्योंकि इंद्र, जैसे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, इंद्र तृप्ति और डिवोशनल सर्विस दे गो इल टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते। और यही एक एडवांटेज है भक्तों के संग में भक्ति करना। तो भक्तों के संग में बार बार आप जब रहेंगे और देखेंगे कि सब लोग जितने भी है कि केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, नाम जाप करना, सेवा करना, हर चीज भगवान का जो श्रृंगार अलंकार, जैसे प्रभुपाद बता रहे थे कि भौतिक जगत में हर कोई अपने आप को ब्यूटीफुली ड्रेस करना चाहता है, अपने आप का श्रृंगार करना चाहता है, और इसके वजह से क्या होता है, वो पूरी तरह से बॉडीली प्लेटफॉर्म पे, शारीरिक स्तर पे कार्य करता है, उसको खुद को अच्छा दिखना है। लेकिन वही भक्त क्या करता है, पूरा दिन, या मतलब जिनके घर में डेटी है या जो टेम्पल में सेवा करते हैं, उनका पूरा केंद्र भगवान को सुंदर, कैसे सुंदर उनका अलंकार करना है, श्रृंगार करना है। तो इस तरह से क्या होता है, वो पूरी तरह से भगवान को सुंदर बनाने में अपना जो है चेतना लगाता है, अपने बारे में नहीं सोचता। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे उसको अपने शारीरिक जो जरूरतें है अपने आप कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम उसका चिंतन क्या होता है कि मैं भगवान के लिए क्या करूं।
भगवान को क्या भोग बनाऊं, भगवान को अगर और कौन सा अच्छे कपड़े पहना सकता हूँ, और कहाँ से अच्छे फूल लाऊं, भगवान के लिए आज क्या अच्छा पकवान बनाऊं। अभी भगवान के भक्तों का भी आज प्रोग्राम है, तो उनके लिए कैसे मैं सेवा करूं। तो इस तरह से पूरा जो उसका केंद्र या चेतना क्या होता है, भगवान और भगवान के भक्तों के सेवा के प्रति होता है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसे अपना शारीरिक, मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने शरीर को दुर्लक्ष्य करता है, बट अपने शरीर को जितना चाहिए स्वस्थ रखने के लिए वो केवल उतना सोचता है। उसके अलावा ऐसा नहीं सोचता है कि आज अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो चलो मैं सबसे अच्छा साड़ी पहनती हुआ माता जी या प्रभु जी सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा कुर्ता पहन लेता हूँ, अच्छी तरह से अपने बाल बनाता हूँ, थोड़ा मेकअप करता हूँ या मेकअप करती हूँ। ऐसा उनका नहीं रहता। उनका केवल और केवल क्या रहता है, जो नॉर्मल जो चाहिए, जो मिनिमम जो चाहिए वही वो सोचते हैं। और बाकी सारा उनका जो एफर्ट या उनका जो प्रयास होता है, एनर्जी, उनकी शक्ति क्या होती है, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में। और इसमें एक हम जानते हैं, हमारे एक बहुत बड़े आचार्य, वैष्णव आचार्य यमुनाचार्य, वो भी बताते हैं कि यद अवधि मम कृष्ण पदारविंदे नव नव धवनी रंतुमासित तद भवती नारी स्मर्यमाणे। तो इस श्लोका का ये अर्थ है कि जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों के प्रति आसक्ति मुझे हुई है, तब से मेरे अंदर, हृदय के अंदर नए नए क्या कहते हैं, नए नए स्फूर्ति भगवान की लीलाओं का, नाम का, उनके कार्यों का चिंतन आता है मुझे। और वो चिंतन इतना मुझे आनंद देता है, इतना आनंद मिलता है मुझे भगवान के सारे लीलाओं का सब जब चिंतन करता हूँ, उनके भक्तों के लीलाओं का चिंतन करता हूँ, तो मुझे इतना आनंद मिलता है कि इस भौतिक जगत के सारे सुख मुझे तुच्छ लगते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा आनंद या सुख देने वाली चीज क्या है, जब एक पुरुष एक स्त्री के साथ जब संग में आता है, वो जो आनंद है सबसे बड़ा आनंद कहा जाता है, इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा सुख। लेकिन वो कहते हैं कि मैं किसी स्त्री के बारे में भी जब सोचता हूँ, किसी सुंदर, तो मुझे इतना तुच्छ लगता है कि मैं उस सोच पे ही मैं थूक देता हूँ। सुष्टु विष्टि नमच, मतलब मुझे इतना वो घृणा लगती है। तो एक्चुअली ये है एक डिवोटी एडवांस कर रहा है कि नहीं। तो भौतिक सुख उसको इतना तुच्छ लगता है कि वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तो इसके वजह से हमको हमेशा भक्तों के संग में जो है भक्ति करनी चाहिए। और ये इंद्र तृप्ति जो है उसको जितना हो सके हमको कम करते जाना है। और इसका हमको क्या लाभ मिलेगा, तो श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं कि भगवान का निरंतर चिंतन करने से तो हम लोगों को जो है केवल इस जन्म में इसका लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अगले जन्म में भी हम जो है, या तो हम भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, या फिर अगर हमारी भक्ति अभी भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, तो अगले जन्म में हमको क्या होगा, हमको एक शुद्ध वैष्णव के घर या किसी भक्त के घर जन्म मिलके, जहाँ पे हमने भक्ति अपनी अधूरी छोड़ी है उसको हम आगे लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा प्रभुपाद सबसे अच्छा बताते हैं कि जो इस भक्ति मार्ग में स्थित है वो अपने मन को नियंत्रण कर सकता है। तो ये देखिए, मन जो है सबसे बड़ा हमारे जीवन का क्या कहते हैं, या तो हमारा बहुत ही अच्छा मित्र बन सकता है या फिर सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, राइट। तो जैसे कभी कभी मन जब अपने नियंत्रण में नहीं रहता, तो जैसे कली में क्या है, कलियुग में जो कली पुरुष है वो क्या दिखता है कि अभी अरे ये तो भक्ति कर रहा है, सारे नियम पालन कर रहा है, चारों नियम का पालन कर रहा है, 16 माला कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, सत्संग कर रहा है, तो इसको मैं अभी किस तरह से तो हर जगह से कली
क्या कहता है, ये तो मतलब भक्ति में आ चुका है, तो अभी मैं इसको किस तरह से अपने वश में करूं। तो उसके पास एक ही हथियार रहता है, भक्तों के अंदर कलह पैदा करना। तो कली क्या करता है, इस मन के द्वारा वो क्या करता है, भक्तों के बीच में कलह यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, या भक्तों के रिश्तों के बीच में किस तरह से मैं ये करूं। तो बहुत टाइम क्या होता है, इस कली पुरुष के कारण हमारे मन जो पूरी तरह से जो प्योर नहीं है, कंटेमिनेटेड माइंड जो हमारा है, अभी तक पूरी तरह से प्योर नहीं है। तो ये कली पुरुष इस भक्तों के बीच में कलह डाल के अपना जो कार्य सिद्ध करता है। तो इसके वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भक्ति इस तरह से करें कि अपने मन को भी नियंत्रण रखे, क्योंकि बहुत सारे जो भक्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं या जो अपराध होते हैं, ये केवल मन के कारण होता है। तो कभी कभी मन बताता है आपको, अरे ये जो भक्त है आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, या ये भक्त जानबूझ के आपको नीचा दिखाना चाहता है, या जानबूझ के ये भक्त आपकी सेवा ले रहा है। आप इतना अच्छा, ये मतलब मान लो आपको कोई एक सेवा दी गई थी, कौन सा सेवा कहेंगे हम लोग, चलो आपको एक कीर्तन करने का सेवा दिया गया था। तो अचानक वहाँ के जो कोई सेंटर या टेम्पल के जो मेन इंचार्ज है, वो कहते हैं आज से एक काम करो, आप ये कीर्तन सेवा छोड़ के आप किचन में जाओ, आप किचन सेवा करो। तो मन बोलता है, अरे आप तो इतना अच्छा कीर्तन करते थे, आपके कीर्तन सुनने के लिए लोग आते थे, और ये देखो ये आपसे जलता है, इसलिए जानबूझ के इसने आपका ये सेवा छोड़ के आपको और एक सेवा दिया है। ये कौन बता रहा है, मन बता रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो टेम्पल के इंचार्ज होते हैं उनको लगता है चलो ये सेवा अच्छा कर रहा है, अभी इसको दूसरा सेवा देते इस तरह से। लेकिन मन क्या करता है, आपको जो आपका मन क्योंकि आपके नियंत्रण में नहीं है और स्टिल कंटेमिनेटेड, तो कली का यही क्या है स्वभाव है। तो आपको क्या करेगा, वो एक ऐसा सोच देगा क्योंकि जानबूझ के आपकी ये सेवा ली गई है। तो फिर क्या होगा, आपका उस भक्त के प्रति या उस सेंटर इंचार्ज हो या टेम्पल के जो उनके प्रति आपका क्या होगा, आपको थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा द्वेष आएगा। तो फिर आपको क्या लगेगा, ये जानबूझ के मेरी सेवा छीन रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि भक्तों के बीच में बहुत टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग या मन मुटाव होना शुरू होता है। इसके वजह से मन को नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। तो एक जो शुद्ध भक्त या फिर जो एडवांस्ड भक्त होता है, वो क्या सोचता है, चलो कोई बात नहीं, ये कृष्णा की ही कोई योजना होगी। शायद मेरे अंदर थोड़ा अहंकार आना शुरू हो गया था, अच्छा कीर्तन कर रहा हूं मैं, तो ये अहंकार आना शुरू हुआ था, तो कृष्णा मुझे इस अहंकार से बचाने के लिए शायद ये सेवा से निकाल के कोई और सेवा में लगा रहा है। ये कौन सोच सकता है, जो सही में जिसका मन नियंत्रण है और जो सही में शुद्ध भक्ति करके सही में भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जो अभी भी सुपरफिशियली भक्ति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आएगा। तो वो बोलेगा आज से मैं आना ही बंद कर दूंगा, मेरी इतनी अच्छी सेवा मुझसे छीन गई है और मुझे किचन में भेज रहे, वो सब्जी काटने के लिए और बर्तन घिसने के लिए। मेरा इतना अच्छा जो टैलेंट है, ये लोग मेरा टैलेंट पूरा खराब करने वाले हैं, तो मुझे अभी यहाँ पे जाना ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी और टेम्पल में जाऊंगा। तो एक्चुअली होगा क्या, मन दिमाग तो वही है, आप किसी भी टेम्पल में जाओ दिमाग को लेके ही जाओगे, तो वहां पे जाओगे तो वहां पे भी ऐसा कुछ होगा। तो हो सकता है वहां पे भी इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम हो। तो मेन प्रॉब्लम हमारा मन का होता है। मन जो है हमको एक्चुअली भक्ति से भटकाता है, और ये किसका काम है, कली का काम है। तो हमेशा ये हमको याद रखना है। तो जब हम शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा, वो लोग हमको गाइड करेंगे। वो बोलेंगे अरे ऐसा नहीं है, आपको हर सेवा करनी है, केवल कीर्तन ही करते रहना नहीं है, आपको किचन सेवा करनी है, आपको क्लीनिंग सेवा करनी है, आपको भगवान का श्रृंगार सेवा, तो हर सेवा करनी है। तो आपका सेवा छीना गया नहीं है, आपको और एक सेवा में लगा रहा, और ये भी तो भगवान की सेवा है। तो ऐसा हमको कौन समझाएगा, भक्त समझाएंगे। इसके वजह से हमेशा भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कुछ चीजें सही से जान नहीं पाते या समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अभी भी उतने एडवांस नहीं है, तो जो एडवांस डिवोटी है वो हमको समझाता है कि इस तरह से ये हो रहा है, तो आप भक्ति मत छोड़िए, या फिर
गलत मत सोचिए। इसकी वजह से भक्त का हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, तो अगर भक्त का हमारे जीवन में संग, हम लोग भक्ति में आने के बाद अगर भक्तों का संग सही से नहीं करेंगे तो हम कुछ ही देर के लिए भक्ति करेंगे और फिर छोड़ देंगे। इसकी वजह से हमारे जीवन में भक्ति करते वक्त भक्तों के संग में ही भक्ति करनी चाहिए। अगर आप पूरा श्रीमद् भागवतम देखोगे, अमल पुराण, इसमें कहा जाता है कि ये किसके बारे में बताते हैं? भगवान के बारे में भक्ति, मतलब भगवान का पूरा गुणगान कर रहा है। लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवतम देखेंगे, केवल भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है, इधर भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों का गुणगान हो रहा है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भरत महाराज, पांडव, आप मतलब पन्ने पलटते जाओ, परीक्षित महाराज, मतलब तो कृष्णा बोल सकते थे अरे ये तो अमल पुराण, मतलब जैसे अभी माता जी इस भागवतम का क्या कह रही थी, गुणगान कर रही थी। मतलब जो पहला स्कंद है भगवान के चरण कमल है, फिर उनकी नाभि है, उनकी जंघे है, उनका जो है शोल्डर, और फिर 10वां स्कंद उनका सुंदर क्या कहते हैं कमल मुख है। तो पूरी तरह से देखा गुणगान जब करे तो पूरा मतलब श्रीमद् भागवत आपके प्रत्यक्ष कृष्ण, तो ये पूरा प्रत्यक्ष कृष्ण है। लेकिन इसमें केवल कृष्ण का गुणगान नहीं हो रहा है। कृष्ण अपने भक्तों के विदाउट डिवोटीज कृष्णा इज इनकम्प्लीट। भले ही भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। सो कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड कंप्लीट। लेकिन और एक उसमें एक छोटा सा नीचे वो रहता है ना, एस्ट्रिक्स, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो उस तरह से कृष्णा पूर्ण होते हुए भी जब कृष्ण के भक्त उनके साथ नहीं, भक्तों का उनके साथ आप नहीं जोड़ोगे तो अगेन कृष्णा बिकम्स इनकम्प्लीट। इसकी वजह से कृष्णा हमेशा राधा रानी के साथ ही खड़े रहते हैं। तो एक प्रभु जी कह रहे थे कृष्णा इज कंप्लीट बट देयर इज अ डिफरेंस। कृष्णा इज कंप्लीट विथ हिज कावर्ड बॉयज, मोर कंप्लीट विथ यशोदा मैया, मोस्ट कंप्लीट विथ गोपीज एंड सुपर मोस्ट कंप्लीट विथ राधा रानी। तो उस कंप्लीटनेस ने भी एक ये है एस्ट्रिक्स। जैसे वो बता रहे थे मैंगो इज मैंगो, ग्रीन मैंगो इज मैंगो, राइपन मैंगो इज मैंगो, लेकिन डिफरेंस रहता है ना। तो उसी तरह से कृष्णा इज कंप्लीट, तो ही सुपर मोस्ट कंप्लीट विथ श्रीमती राधा रानी। तो सोचिए भगवान को भी भक्त की जरूरत है, नहीं तो वो भी अपने ही बिकम्स इनकम्प्लीट। तो हम लोग तो मतलब जीव है जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कैसे करनी है। तो सोचिए हमको कितना भक्तों का जरूरत है। तो कभी भी आप मतलब ऐसा मत सोचिए कि मैं बिना भक्तों के ये भक्ति कर सकती हूँ। और भगवान को भी बहुत आनंद आता है जब हम सारे भक्त मतलब एक साथ आके भगवान का गुणगान करते हैं। इसलिए कहते हैं ना सम्यक संकीर्तन। मतलब क्या है संकीर्तन? यानी सारे भक्त जब साथ में आके जब कीर्तन करते हैं उसको कहते हैं संकीर्तन। और जपा, इवन जपा हम देखते हैं, आप अकेले जपा कीजिए और भक्तों के संग में जपा कीजिए, कितना उसमें डिफरेंस है। जब आप अकेले जपा करते हो तो कल ही आपके साथ में आके बैठते हैं और आपको बोलते चलो अभी सो जाओ, बहुत जपा कर लिया तुमने, ये तो करना ही है, मरते दम तक यही करना है, थोड़ा सो जाओ, तो आपको कली सुला देती है। लेकिन जब भक्तों के संग में आप रहते हैं तो कली आने से डरता है। तो कली क्या करता है, दूर से ही देखता है अभी कब ये सारे लोग चले जाएंगे फिर मैं इसको सुलाता हूँ। तो जब भक्तों के संग में होता है तो कली का प्रवेश होना बहुत दुर्लभ होता है और कली आने भी नहीं देखता। तो केवल और केवल जब हम भक्तों के संग में भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति होगी। और ये सारे जो भक्त है वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो इसके वजह से जब भी हमको किसी भक्त का संग का लाभ मिलता है तो हमें केवल और केवल उस भक्त के अंदर अच्छाई, अच्छे गुण देखने चाहिए। हमको कभी भी कोई दोष या उनके अंदर कोई खामियां नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उसने अगर भगवान ने उनका संग हमको दिया है, कृष्णा ने किसी भक्त का हमको संग दिया है, तो केवल और केवल हमारे भक्ति में प्रगति कैसे हो उसके वजह से। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दोष है, हम वही दोष उनमें देखते हैं। राइट? एक्चुअली एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर कहा था,
जो दोष हमको और भक्तों में दिखते हैं, एक्चुअली वो दोष हमारे में होते हैं। ओके, दे आर जस्ट द मिरर, वो लोग केवल एक आईना है। तो जब हम उनके अंदर दोष देखते तो समझ जाना चाहिए वो दोष मुझ में है, ना कि उस भक्त में। तो इसी तरह से हम लोग अपने भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और ये सारा जो इंद्र तृप्ति है, ये सारा जो भोग करने का जो इच्छा है, वो केवल और केवल शुद्ध भक्तों के संग में जब हम भक्ति करेंगे, धीरे 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 वो सारे जो इंद्र तृप्ति करने का इच्छा है वो चले जाते हैं। और केवल हमारे इस क्योंकि हम इस भौतिक शरीर में है, उसके लिए जो जो चाहिए उसको स्वस्थ रखने के लिए हम केवल उस चीज को ग्रहण करते हैं। तो ये भक्ति का एक सबसे बड़ा लाभ है। तो अननोइंगली, बिना पता चले, हमारे अंदर से पूरा जो भौतिक जगत के प्रति आकर्षण चला जाता है। वी गेट डिसटेस्ट। तो कल अगर कोई हमको बताएगा चलो वहां पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पे ये मिलता है वो मिलता है, हम लोग बोलेंगे नहीं आप भी मत जाओ, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, आप भी मत जाओ। आप क्या करो, हमारे संडे फीस्ट को आओ, मैं आपको उससे भी अच्छा खिलाता हूँ। क्या होगा उससे? आपका क्या कहते हैं, आपका पेट भी भरेगा और अंदर जो भी मैल है वो भी निकल जाएगा कृष्ण प्रसाद खाने से। तो इस तरह से मतलब आपको कुछ आकर्षण नहीं लगेगा। कोई बोलेगा पता है ये हीरो की पिक्चर लगी है, बहुत मैंने सुना है, रिव्यूज सुपर हिट है, मतलब टिकट नहीं मिल रहे, मैंने किसी तरह से 2 टिकट निकाले, चल मेरे साथ पिक्चर देखने। तुम क्या बोलोगे? उससे अच्छा आप क्या करो, संडे में आओ, मैं आपको उससे भी अच्छा, आपको पिक्चर से भी अच्छा आपको 1 घंटा आपका आनंद का व्यवस्था करता हूँ हरी कथा सुन के। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा चलो मैंने भी सुना है। आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया में भी आपको सुनने दिखने मिलता है ना, ये पिक्चर अच्छी है, इतना मतलब इतना पैसा कमाया, सब लोग पागल हो रहे हैं, थिएटर में रो रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा क्या पागलपन है, लोग क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं, राइट। तो ऐसा आसक्ति मतलब इतना आपको मतलब कोई कुछ भी बताए उस पिक्चर के बारे में, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपकी पूरा जो चेतना है कृष्ण में लगी है। ये है फायदा कृष्ण भक्ति करने का। तो आप उस आदमी को क्या बोलोगे, व्यक्ति को, चलो आप वहां पे नहीं, मेरे साथ चलो, फ्री में, टिकट भी नहीं चाहिए, मैं फ्री में आपको क्या करता हूँ, आपका पूरा एंटरटेनमेंट करता हूँ, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, कथा सुनाता हूँ, कीर्तन कराता हूँ, नचाता हूँ और फिर बहुत ही महाप्रसाद खिलाता हूँ। तो जब व्यक्ति 1-2-3 बार आएगा तो फिर उसको भी लगेगा कहाँ मैं उस पिक्चर के चक्कर में था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हम सारे लोगों को, कितने लोग पहले क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, जब इंडिया हारती थी तो घर में टीवी फोड़ देते थे। आप सबको मतलब ऐसा लगता था कि उन्हीं के घर में कुछ बड़ा ये हुआ है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, कब खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, कुछ भी पता नहीं। तो लोग जब पूछते हैं मैच देखा, तो हम पूछते हैं मैच कौन सा मैच। तो इस तरह से तो क्या होता है, पूरा जो इस भौतिक जगत का आकर्षण खत्म हो जाता है और केवल कृष्ण के प्रति आकर्षण, और ये केवल और केवल भक्ति करने से ही हो जाता है। और बिना कोई फोर्स के, अगर कोई यहाँ पे भक्ति कर रहा है और आपसे पूछा जाए कि आप ये सब आपने धीरे धीरे बहुत सारी चीजें छोड़ दिए, क्या आपको किसी ने फोर्स किया? क्या किसी ने आपको बांध के रखा था? क्या नहीं, अपने आप विदाउट एनी फोर्स आपने स्व इच्छा से ये सारा छोड़ दिया। तो ये है भक्ति का पावर, इतना शक्ति है इस भक्ति में और भक्त के संग में। भगवान से ज्यादा ना भगवान के भक्त, कृष्ण स्वयं नहीं आए थे, राइट। भक्त ने आके अपना संग देके भगवान का गुणगान करके ये सारा कार्य कराया। तो दैट्स द रीजन मोर देन कृष्णा's devotees are so powerful। इसके वजह से भगवान भी अपने आप को अपने भक्तों के साथ ना होते हुए अपूर्ण महसूस करते हैं। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद ने हमको इतने कोटि लोगों में इतने भक्त, मतलब इतने कोटि जीव है, लेकिन उसमें बहुत ही कम प्रचुर मात्रा में भक्त है। लेकिन हमारा भाग्य है कि हमको ऐसे प्रचुर मात्रा भक्तों का संग मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है। फिर इस भागवतम के द्वारा हमको मिल रहा है, मतलब प्रहलाद महाराज
ध्रुव महाराज, इनका जब हम पढ़ते हैं चरित्र तो वो भी उनका संग करने के बराबर है। So when we read the glories of प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, पांडव, ऐसा मत सोचिए कि कहानी पढ़ रहे, नहीं, यू आर एक्चुअली एसोसिएटिंग विथ देम, और पढ़ पढ़ के उनके जो दिव्य गुण हो हमारे अंदर आते हैं। इसके वजह से बुक्स पढ़ने चाहिए, बार बार पढ़ने से हमको पता चलता है, वाह पांडव ऐसे थे, मुझे भी ऐसे बनना है। प्रहलाद महाराज इतने निष्ठावान थे, हाँ, उनको मारने की कोशिश की, फिर भी वो भगवान के प्रति उनका कभी भी श्रद्धा कम नहीं हुआ। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद की जय। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।